Hello, and welcome to part 2 of genocide. In this lecture, we will be discussing some of the findings of some of the genocides. Especially, we will be concentrating on one of the work, Genocide Watch. So, Gregory Stanton, who is basically the person from Genocide Watch, has given a framework of how genocides takes place, or what are the stages of genocide. So, in 1996, when he presented a paper, he talked about 8 stages of genocide, and he called them predictable but not inexorable. However, in 2012, he extended his own work and said that some of these stages can occur simultaneously. So, in this lecture, what we are trying to understand or see is that what are these 10 stages of genocide and how genocide takes place and whether we can prevent it or not. So if you see Gregory Stanton's framework, so there are 10 steps of genocide or 10 stages of genocide. The first one is classification. The second one is called symbolization. The third one is discrimination. The fourth one is dehumanization. The fifth is organization, which is followed by polarization, preparation, persecution, extermination, and finally the denial. Now, what are these stages and how they occur is something which is important for all of us to understand. And he has studied a lot of genocides after, especially the genocide which has taken place after the Second World War, and came out with a very proper framework. But he has also taken the example of the genocide which was taking place during the Second World War, that was the Nazi Holocaust. Now, the first stage is called classification. Now, this is from where the problem starts. Whenever we distinguish two people, the distinction between us and them, this is us, that is them, the problem starts. Uh, जब तक हम ये चीज समझ सके कि भाई ऐसी बात नहीं है कि वो अलग है हमसे, तब तक सब कुछ ठीक है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम हैं और वो हैं, so that distinction between us and them is the starting point, is the beginning of a genocide. And this is the most important step which we should understand and try not to disfigure anybody or try not to discriminate somebody on the basis of they are like this and we are like this, right? So that is the first thing which starts the problem. The second step is called symbolization. Now, what is symbolization? हम किसी को क्या करते हैं कि किसी नाम से या किसी लैंग्वेज के कारण या किसी तरीके की क्लोथिंग या कुछ मार्क्स के थ्रू जो है उनको एट्रीब्यूट करने लग जाते हैं. Now, this is also the starting point or the second point. If you see, this is the second point on which the categorization takes place. और हम क्या करते हैं उनको सिंबलाइज करने लग जाते हैं कि अरे ये ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं या इनके नाम ऐसे होते हैं या ये जो है उस तरीके की भाषा बोलते हैं और फिर हम ऑब्वियसली उनका मजाक तो उड़ाते हैं. एंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? एज आई हैव डिस्कस्ड बिफोर एज वेल कि डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम. द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. भाई आप बड़े और बुजुर्ग में या छोटे और बड़ों में अगर कोई डिस्टिंक्शन करते हैं और वो डिस्टिंक्शन जो है उनके भले के लिए है, उनके फायदे के लिए है, तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हेन दिस डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट्स इन अ वे that you are actually seizing some kind of rights from them. जैसे कि हम कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं देते हैं या कुछ लोगों को एक सर्टेन तरीके के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं कि इनके स्कूल अलग हैं, उनके स्कूल अलग हैं, है ना? अगर बॉयज और गर्ल्स के स्कूल से तो वो डिस्क्रिमिनेशन समझ में आता है. लेकिन अगर ब्लैक्स और व्हाइट्स के स्कूल्स हैं
जैसे यूएस में एक ज़माने में क्या होता था, ब्लैक्स की अलग यूनिवर्सिटी होती थी। इनफैक्ट पहले तो उनके यूनिवर्सिटीज़ होते नहीं थे, फिर उनकी यूनिवर्सिटीज़ बनने लगे। व्हाइट्स की पुराने हैं, लाइक ऑल दीज़ ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ व्हिच यू नाउ आर द एजुकेशनल हब, वो सारों में जो है पहले ब्लैक्स नहीं पढ़ सकते थे। दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी, उनके लिए अलग यूनिवर्सिटीज होती एंड सो ऑन। तो इस तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ये भी जो है, बिकॉज अगेन आप, जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, दैट जेनोसाइड इज अ सोशल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। तो आप जो है किसी को, एक ग्रुप को जो है डिसएडवांटेज ग्रुप बना रहे हो और उनको जो है सोशली एक्सक्लूड कर रहे हो, अलग कर रहे हो, तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स द प्रॉब्लम एंड दैट डिस्क्रिमिनेशन इज द थर्ड स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज डीह्यूमनाइजेशन। इंसान को इंसान ही नहीं मानना है ना। उनको कुछ जानवर, कोई इंसेक्ट, किसी चीज के नाम से बोलना है, या उनको बोलना है कि ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये थोड़े कम ह्यूमन बीइंग्स है ना। एक जमाने में लोगों को जो है जू में भी रखा जाता था, आप लिटरेचर पढ़ के देखिएगा, ब्लैक्स को और कुछ और तरीके के लोगों को जो है जू में रखा जाता था, फिर व्हाइट्स आके उनको देखते थे, है ना, एंड सो ऑन। इस तरीके की और भी बहुत सारी इस तरीके की चीजें हुई। इनफैक्ट कॉकरोच, द वर्ड विच यू आर सेइंग हियर, कॉकरोच, ये हुटूस जो है टूटसीस को कहते हैं। और वो जो है बोलते हैं कि ये जो है बहुत प्रॉब्लम करेगी। इसी तरीके से जर्मन, नाजी जर्मन्स ने जो है एक जमाने में ज्यूस को जो है रैट बोला, है ना, रोडेंट्स बोला, कि ये जो है जैसे कि खेत खराब कर देते हैं, हमारे घर में अनाज खराब कर देते हैं, इसी तरीके से देश को खराब कर देंगे, तो ये रैट्स हैं, है ना। तो इस तरीके की जो डीह्यूमनाइज्ड अंडरस्टैंडिंग है, लोगों को इंसेक्ट्स कहना, लोगों को जानवर कहना, लोगों को आधा ह्यूमन बीइंग कहना या ह्यूमन बीइंग नहीं कहना, आर बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप थ्रू व्हिच द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। इसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली, क्योंकि देखिए आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जेनोसाइड एक पर्सन तो कर नहीं सकता, इट हैज टू बी एन ऑर्गेनाइज थिंग। इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग की भी जरूरत पड़ती है, वो स्टेप भी आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चाहे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, वो ऑर्गेनाइज करती है ग्रुप्स, स्क्वाड्स, है ना, और इस तरीके के संस्थाओं को जो कि इस तरीके की चीजों को करना चाहती है। और उसके बाद जो है वो लोगों को एम्यूनिशन प्रोवाइड करती है, उनको वेपन्स प्रोवाइड करती है, एंड विद दैट दे आर going for the D-Day, or they are going for those kind of things which they have been entrusted with. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम कहते हैं फिफ्थ स्टेप। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कैसे किया जाता है? जब आप दो ग्रुप्स को, जैसे कि क्या होता है कि यूजुअली पीपल डू नॉट हेट ईच अदर, लेकिन फिर पूरी की पूरी ग्रुप को जो है हेट कराने के लिए क्या करते हैं, दैट वी ब्रॉडकास्ट हेट स्पीच एंड प्रोपोगेंडा आइटम्स एंड दिस एंड दैट। इन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने वैसा किया है, उनको ये कहा गया है, वो कहा गया है। दिन भर वो सारी चीजें जब चलती रहती है, तो पूरा का पूरा ग्रुप जो है पोलराइज हो जाता है। they are they start fighting with each other, they develop a lot of enmity। और यहाँ पे क्या है, मास मोबिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो मास मोबिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, उसका मतलब क्या है कि आप 10 लोगों को, 50 लोगों को जो है 5,000 लोगों को मारने के लिए नहीं एम्प्लॉय कर सकते। भले ही आप उनके पास गन्स दे दो एंड दिस एंड दैट दे दो, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो करना क्या पड़ेगा कि आपको 5,000 लोगों को ही तैयार करना पड़ेगा 5,000 लोगों को मारने के लिए, या 10,000 लोगों को तैयार कर लीजिए 5,000 लोगों को मारने के लिए, तो और आसान हो जाएगा। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो ये जो स्टेप होता है, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है। अब ये स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, ये सारी चीजें साथ में भी चलती है ना। देयरफॉर ग्रेगरी स्टैंटन आल्सो सेड दैट द स्टेप्स आर नॉट लाइक कि ऐसा है कि इनके बीच में ओवरलैपिंग होता है, साइमल्टेनियसली भी ये स्टेप्स हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक स्टेप के बाद ही दूसरा स्टेप होगा, स्टेप्स एक साथ भी होते हैं। इसी तरीके से प्लानिंग होती है, जैसे मैंने आपको बोला भी कि प्लानिंग करते हैं, उसके लिए बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, कभी कभार रिलीजियस ग्रुप्स के लीडर्स आते हैं, कभी गवर्नमेंट के लीडर्स आते हैं, कभी कोई ऐसे ही संगठन है जिसका कि वो पॉलिटिकल या रिलीजियस नहीं है, लेकिन वो किसी तरीके का है ऑर्गेनाइजेशन या वो, तो दे ऑल्सो कम टुगेदर, दे सिट, दे प्लान, विचार गोष्ठियां होती है ना, चिंतन शिविर होता है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स लाइक दैट, एंड दे सिट टुगेदर एंड दे डिस्कस एंड देन दे प्लान कि भाई हाउ वी विल एग्जीक्यूट देम। सो दिस इज ऑल्सो द थिंग which happens, and this is also like ये स्टेप भी जो है दूसरे स्टेप्स के साथ हो सकता है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, परसिक्यूशन। परसिक्यूशन को कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि उनको उनके प्रॉपर्टीज और उनके बिजनेस से निकाल बाहर फेंक,
लाइक ज्यूज बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 1930s का और एंड ऑफ द 30s का जमाना है, तो उसमें उनको क्या किया कि आप बिजनेस नहीं ओन कर सकते, ठीक है ना, आप प्रॉपर्टी नहीं ओन कर सकते, तो उनके बिजनेस, उनके प्रॉपर्टीज को कन्फिस्केट कर लिया, है ना, उनको उनके घरों से, उनके ऑफिसेस से, उनके बिजनेस से बाहर निकाल दिया और उन सबको जो है चलवा दिया गया कि चलो भैया आप घेटोस में चलो, कंसेंट्रेशन कैंप्स में चलो। कंसेंट्रेशन कैंप्स या घेटोस जो है इनको क्या कहते थे, लेबर कैंप्स कहते थे, दे यूज्ड टू कॉल देम लेबर कैंप्स, कि आप वहां पे जाएंगे, बहुत काम है, ये करना है, वो करना है, वहां पे जाके फिर उनको जो है मार देते। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उनको जो है प्रोसिक्यूट करेंगे, उनको जो है वहां से हटाएंगे और उनको अलग करके बना के लेके चले जाएंगे, और फिर जहां पे वो लेके चले जाएंगे वहां पर उनको खत्म करेंगे। तो परसिक्यूशन इज द 8th स्टेप। द 9th स्टेप इज एक्सटर्मिनेशन। यहाँ पे जो है किलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब अगर मैं आपको ज्यूस के बारे में बताऊं, तो ज्यूस के बारे में क्या हुआ कि इनको जो है बिजनेसेस से और ऑफिसेस से और इनकी प्रॉपर्टीज से जो है कन्फिस्केट करा गया। तो आप ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स देख सकते हैं जिसमें कि द होल ऑफ द ज्यू कम्युनिटी इज वॉकिंग, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सब जो है पैदल चल रहे हैं, अपने हाथ में एक सूटकेस लेके और रास्ते से जा रहे हैं एंड सो ऑन। और उनको जो है गेटोज में या कंसंट्रेशन कैंप्स, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं झुग्गी झोपड़ी, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके लिए लेबर कैंप्स बनाए गए थे अलग से। तो वहां पे लेके चले गए, वहां पे लेके चले गए। फिर उनमें से कुछ लोगों को खत्म करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्या बोला कि इनको सैनिटाइज करना पड़ेगा, बहुत सारी बीमारियां चलती थी, सभी भी आप लोग सुनते हैं ना, सैनिटाइज करना, सैनिटाइज करना। तो बहुत सारी बीमारियां चल रही, सबसे पहले सैनिटाइज करना। तो सबको पब्लिक बाथ में डाल दिया और पब्लिक बाथ की दरवाजे बंद कर दिए, और वहां पे जो पाइप्स थे जिसमें से पानी आना चाहिए था, उसमें से साइक्लोन डी गैस आई, साइक्लोन डी गैस आई, वो की पॉइजनस गैस होती है, तो वो सूख गया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मार दिया। बहुत सारे लोगों को जो है ऐसी डेली गोलियां मार देते, ऐसे खड़ा कर दिया जगह पे, और वहां पे जो है गोलियां मार रही, शूट कर दिया, शूटिंग देम ऑफ, है ना। तो इस तरीके से भी मारा है। कोई भी कुछ भी किसी भी तरीके से मार सकता है। आप इस बहुत सारी मूवीज हैं, द बॉय इन स्ट्राइप्ड पिजामास एक मूवी है, आप शिंडलर्स लिस्ट देख सकते हैं, उसमें भी है। और भी ऐसे बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें कि उनके उनको कैसे मारा जाता था वो सब चीज दिखाएंगे। इनफैक्ट टॉर्चर कर करके भी मार देते थे, खाना कम देते थे उससे भी मर जाते थे। मतलब जस्ट इमेजिन दैट देयर इज अ बाउल ऑफ दिस साइज, ठीक है ना, और उसमें 1/4 भरा हुआ है, मान लेते हैं कि कुछ दलिया टाइप का सामान, और वो एक हफ्ते का खाना था। एक हफ्ते तक जो है उतना खाना देते थे। तो धीरे-धीरे वो डीके करने लग जाते थे एंड दे यूज्ड टू डाई। और टॉर्चर भी बहुत करते थे, उनको सोने नहीं देते थे, उनको जो है मारते-पीटते रहते थे। उनको छोटी-सी जगह पे जो है खड़ा रहने के लिए कहते थे एंड सो ऑन। तो उसमें भी जो है वो रह नहीं पाते थे, और धीरे-धीरे जो है दे यूज्ड टू डाई। अब जेनोसाइड हो जाने के बाद जो स्टेट है या जो लोग हैं जिन्होंने कि जेनोसाइड को कैरी आउट किया है विद द हेल्प ऑफ द स्टेट, क्या करती है, वो करती है डिनाई। डिनाई क्या करती है कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, और जो लोग ऐसे मारे गए हैं, मरे हैं, वो ट्रेटर्स थे, दे वर ट्रेटर्स, दे वर डिसलॉयल टू आवर कंट्री एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके के एक्यूजेशंस करते हैं। और अगर कोई मॉडरेट होता है जो कि उन्हीं का होता है, लेकिन फिर भी इनके लिए बोल रहा होता है, तो फिर वो उनको भी जो है प्रोसिक्यूट करने लग जाते हैं, उनको भी मारने काटने लग जाते हैं एंड सो ऑन। सो दिस इज ऑल्सो द स्टेज और स्टेप जहाँ पे कि विच ग्रेगरी स्टैंटन हैज सेड कि ये भी होता है। तो ये जो steps हैं, these steps actually picturize the state of genocide, या genocide क्यों होता है, कैसे होता है, to an extent. Not all the genocides will be explained by this kind of phenomenon या these kind of stages, लेकिन definitely it gives us a very good framework to understand a lot of genocides, which we will be discussing in part 3. But before that, Gregory Stanton has said that genocide can be prevented, है ना। ईच एंड एवरी जेनोसाइड, जितने भी जेनोसाइड्स हैं, वो सारों को जो है रोका जा सकता था या रोका जा सकता है, अभी भी हो रहे हैं या होते रहते हैं, उनको रोका जा सकता है। फर्स्ट थिंग इज दैट, उसके लिए क्या कहता है कि गवर्नमेंट या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, दे डू नॉट हैव पॉलिटिकल, इनफैक्ट दे लैक पॉलिटिकल विल। एक्चुअली अगर पॉलिटिकल विल हो और स्टेट अगर चाहे, तो इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी को रोक सकती है, स्पेशली जिसमें कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, उनको तो वो रोक ही सकती है। और जो इनमें डायरेक्टली भी इन्वॉल्व है, वो इस तरीके का हेटरेट क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है ना। स्टेट हैज अदर वेज ऑफ मैनेजिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड इट शुड नॉट बी दी वे।
फिर वो कहता है कि देयर इज अ नीड टू मोबिलाइज सिविल सोसाइटी या ह्यूमन राइट्स ग्रुप, रिलीजियस लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशन, कि इनकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। दे हैव अ वेरी लार्ज रोल टू प्ले, बिकॉज अल्टीमेटली ये जितने भी सो कॉल्ड मास मूवर्स होते हैं, यानी कि दोज पीपल हु आर इन्फ्लुएंसर्स, है ना, आजकल आप लोग इन्फ्लुएंसर कहते हो ना, कि चाहे इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो या कहीं पर हो, इनको हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। मींस दैट दे हैव मास फॉलोअर्स, है ना, बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, और वो जो है बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये इनका काम होना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे कि एक हेट्रेड हो गया है और लोग जो है मारने काटने को उतर आ रहे हैं, तो उनको रोकना चाहिए। इनफैक्ट आई विल शेयर विथ यू द लिंक ऑफ ग्रेगरी स्टैंटन्स वर्क। तो देयर यू कैन सी दैट ही हैज provided and I will say he has suggested that each and every step can be stopped, each and every step can be prevented। तो उसके लिए जो है उन्होंने मेजर्स बताए हैं, और वो बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफिकल्ट है। बट सिंस देर इज नो इंटरनेशनल और पॉलिटिकल विल, जैसे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन भी इसीलिए किया जाता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो है यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करती नहीं, या करने के बाद फिर नहीं करती, मतलब कि वो वापस आ जाती है, अपने ट्रूप्स को वापस लेकर आ जाती है, और फिर वहां पे मार काट होता है। जैसे रवांडन जीनोसाइड, अभी हम इसको थर्ड लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे, इट इज अ स्टार्क एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं हुई। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक चीज और सजेस्ट की है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई गेस सो वी आर आल्सो फॉलोइंग द सेम थिंग, दैट पुट जेनोसाइड एजुकेशन इन करिकुला of every secondary school and university in the world, because it is very important for all of us to understand that there is no need for discrimination between human beings। मतलब डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस और डिस्क्रिमिनेशन हमने इसीलिए बहुत इनिशियली जब हमने ह्यूमन राइट्स का कोर्स स्टार्ट किया था, हमने बताया था ना कि भाई आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि डिस्क्रिमिनेशन और बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हमेशा गलत नहीं होता है, लेकिन बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उसको डिफाइन करता है कि वो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, और आपको या हम सबको जो है इन चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। और अगर आसपास इस तरह की कोई भी चीजें घटती है, जैसे मजाक फॉर दैट, ठीक है ना, आप किसका मजाक उड़ा सकते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझिए। You can make fun of people who are very close to you. You cannot make fun of people who are not close to you, first thing. Second thing, मजाक कहां तक उड़ा सकते हैं, जहां तक सामने वाले को बुरा नहीं लगे। इफ यू आर मेकिंग फन ऑफ somebody and he or she is getting offended, stop doing that। बट what we do is that we keep on continuing with that। और वो जो छोटा सा छोटा मजाक है, चाहे किसी का कार्टून बना देना इस तरीके से कि वो उसको बहुत ही डेरिवेटिव रूप में दिखा रहा है, या आपने उसके लिए कुछ लिख दिया, ठीक है ना। देखिए, डिस्ट्रक्शन इज द इजीएस्ट थिंग ऑन अर्थ, है ना। आप किसी ग्लास को आराम से तोड़ सकते हैं, लेकिन उस ग्लास को बनाने में जो मेहनत लगती है वो उतना आराम का काम नहीं है। तो यू कैन ऑलवेज मेक फन ऑफ पीपल, यू कैन क्रिटिसाइज देम, है ना, यू कैन डू ऑल दिस डिस्ट्रक्टिव वर्क, बट ऐसा करना नहीं है। एंड दैट इज द थिंग विच वी शुड एजुकेट अस विथ, कि आप मजाक अपने बहुत क्लोज पर्सन का बनाइए, थोड़ा सा भी दूर पर्सन का नहीं बनाइए, और वो भी तब तक बनाइए जब तक उसको बुरा नहीं लग रहा है। अगर बुरा लग रहा है तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, और एक्चुअली द थिंग इज दैट इट स्टार्ट्स पोलराइजेशन एंड इट मेक्स यू अस एंड देन, और वहीं से जो है सारी प्रॉब्लम चालू होती है। एंड लास्ट, also there is a need to hold state governments and leaders accountable। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स हैं, इनफैक्ट नेशन में भी जो है बहुत बार वॉर क्राइम्स के लिए जो है लोगों को सजा मिली, एंड सो ऑन। एंड दिस इज समथिंग आल्सो व्हिच इज ए मस्ट फॉर स्टॉपिंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, क्योंकि अगर लोग इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसके बाद उनको जीवन काल में कोई सजा नहीं मिलती है, तो अदर पीपल ऑल्सो गेट वेरी इंस्पायर्ड कि हम भी ऐसा, है ना, हमारी भी उस ग्रुप से नहीं बनती, हम उन ग्रुप को खत्म करेंगे या उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार करेंगे। सो दैट थिंग हैज टू स्टॉप। फर्स्ट थिंग इज दैट आप प्रिवेंट करना चालू कीजिए, और उस तरीके के कोई भी स्टेप्स मत लीजिए या करिए जिससे कि जेनोसाइड हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर इस तरीके की कोई चीज होती है, तो जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, है ना। सो
This was all from my side for today, and the whole idea was to make you understand कि genocides कैसे कैसे फैलता है या कैसे कैसे stages होते हैं. So in the third lecture, we will be discussing a few genocides like the Nazi Holocaust, the Rwandan genocide, the Cambodian genocide, and also certain cases of genocides here and there जो कि हुई हैं और हमें समझ में नहीं आती कि वो genocides हैं, but actually वो भी genocides थी. Thank you very much for watching.